Today I am delivering the lecture on cold chain. Cold chain, as you all know, this is for vaccines. To be effective in preventing the diseases, vaccines are used. Vaccines should have better safety and potency. Two things are important for vaccines. Potency is maintained by cold chain. Vaccines are either sensitive to heating or freezing, then vaccines lost their potency. तो इसको maintain करने के लिए we do maintain the cold chain. That is, we store and transport at an appropriate temperature. Details we will take. Definition: what is cold chain? That is system of transporting vaccine at recommended temperature. ना टेम्परेचर हमें ज़्यादा करना है, ना टेम्परेचर हमें कम करना है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज़. जहाँ वैक्सीन बन रही है वहाँ से यूज़ पे जाएगी, उसके बीच में हमें पूरा टेम्परेचर मेंटेन करना है. दैट इज कोल्ड चेन. Essential elements for it is personnel to organize and manage the vaccine distribution. जो persons बीच में हमारे involve हो रहे हैं, that will organize. Equipments are also used. Transport facilities, without that no one will, vaccines will be not transported. Then maintenance of equipment. जो equipments हमारे use हो रहे हैं cold chain equipments, that will be maintained. Temperature and other things also. Then monitoring of that equipments. At PHC levels, all vaccines are stored in ILR only. This is a pictorial representation of cold chain. Cold chain में क्या है? This is system of storing and transportation of vaccine. Vaccine बनी at the manufacturer level, then go with the refrigerated vans, then store at the PHC, ILR, then with the vaccine carrier. Vaccine carrier में vaccine हमने रखी with the ice pack, then at the साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वैक्सीनेशन की साइट पे बच्चे को वैक्सीन लगेगी. वैक्सीन्स आर सेंसिटिव टू हीट. द मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन वी कैन से इज BCG एंड आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बट मोस्ट सेंसिटिव टू हीट OPV एंड मीजल्स. इफ दे आर एक्सपोज टू हीट, वैक्सीन्स विल बी डिस्ट्रॉयड. दे विल नॉट नो लॉन्गर पोटेंट. And vaccines, if T series vaccines and hepatitis V vaccines especially, if they are exposed to temperature or they are exposed to freezing, then they are of no use. Vaccines will be, potency will be lost. This is our cold chain system. That is manufacturing point पे vaccines जो है हमारी 100% potent है. Then through the air or refrigerated van, they will go to the regional headquarter or state headquarter or divisional headquarter, then district headquarter, then PHC through vaccine carrier go to the sub center. Then various cold chain equipments are, first is walk-in freezer, that is short form WIF. This is used for bulk storage and of OPG or freeze the ice packs. This maintains around -20 degrees centigrade temperature. This is at रीजनल डिपोट्स जहाँ पर हम वैक्सीन्स को बना रहे हैं. फ्रीज़र इतना बड़ा होगा कि वी कैन गो इन वॉक इन. फ्रीज़र के अंदर वी गो फॉर वॉक इन, दैट्स व्हाई द नेम इज वॉक इन फ्रीज़र. देन वॉक इन कूलर, वी गो इन द कूलर, दैट इज ऑल्सो फॉर बल्क स्टोरेज एट द स्टेट एंड रीजनल लेवल्स. दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ +2 to +8 degree centigrade. Then deep freezers. Deep freezers are maintain the temperature between -18 to -20 degrees centigrade. These are used for especially which are temperature sensitive. That were we are dealing, that is OPV and measles. OPV is stored especially at the deep freezer and for freezing the ice packs. All districts have 2 to 5 large deep freezers at least, and PHC has 1 small deep freezer. And diluents should not be kept in this because they will फ्रीज, वो जम जाएंगे. जमने के बाद देन विल ऐड इन द वैक्सीन. जब वैक्सीन में ऐड करेंगे तो वैक्सीन का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. विच आर स्टोर्ड बिटवीन द +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे डाइल्यूएंट को स्टोर करेंगे. ILR, दैट इज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑल द वैक्सीन्स इंक्लूडिंग द OPV एट द PHC फॉर 1 month ओनली. ILR पे हम केवल 1 month के लिए वैक्सीन्स को स्टोर करेंगे, नॉट फॉर मोर देन 1 month. 1 month होने के बाद वी चेंज द वैक्सीन्स, रिटर्न बैक, एंड दे मेंटेन द टेम्परेचर एट +2 to +8 degree centigrade. ILR.
At PHC, all vaccines including OPV and measles are kept in ILR, but no vaccines are kept in the deep freezers. इसीलिए केवल 1 महीने तक अपन स्टोर करते हैं. It has the top opening. ILR is open from the top. Like our freezers, अपने freezers जो होते हैं वो सामने से ओपन होते हैं, but ILR ऊपर से ओपन होता है. Why so? Because the temperature, the cold air is go down. ठंडी हवा नीचे जाएगी तो temperature will maintain better. ILR has two parts, top and bottom. बॉटम जहाँ पर कोल्डेस्ट एरिया हो गया वहाँ पर हम OPV और मीजल्स को स्टोर करेंगे, BCG विदाउट रिकंस्टिट्यूशन. एंड जो ऊपर गर्म एरिया होगा वहाँ पर हम T सीरीज की वैक्सीन लाइक DPT, TT एंड DT विल बी स्टोर्ड. दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप दिख रहे हैं कि नीचे OPV, BCG और मीजल्स को स्टोर किया है और ऊपर हेपेटाइटिस बी और DPT या फिर डायल्यूएंट स्टोर करेंगे. दिस इज द कट सेक्शन ऑफ ILR. बास्केट्स में रहता है, बास्केट्स में जाएंगी और निकल के आ जाएंगे और निकाल लेते हैं अपन. टेम्परेचर के लिए एक उसमें थर्मामीटर लगा होता है. देन वैक्सीन कैरियर्स. वैक्सीन कैरियर्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज लाइक वैक्सीन फ्रॉम PHC टू सब सेंटर. PHC पे वैक्सीन आपने लेके रख ली है, उसके बाद यू आर गोइंग टू द एडमिनिस्टर द चाइल्ड वैक्सीन. देन टेक द वैक्सीन इन द वैक्सीन कैरियर एंड गो टू द सब सेंटर बाय द हेल्थ वर्कर लाइक ANM. कैसे लगाते हैं इसमें? 4 फ्रोजन आइस पैक्स. ये अपना दिस इज अवर वैक्सीन कैरियर फ्रॉम इनसाइड. ऊपर से देखेंगे अपन तो उसमें 4 शेल्स दिखाई देंगे जिसमें अपन 4 फ्रोजन आइस पैक्स, बिल्कुल पत्थर बर्फ़ होते हैं, उनको हम चारों को स्टोर कर देंगे. पहले हम आइस पैक प्रिपेयर करते हैं. आइस पैक, हाउ विल बी प्रिपेयर द आइस पैक, अभी लेंगे आगे. आइस पैक प्रिपेयर करने के बाद अपन 4 उसमें आइस पैक कर देंगे और पॉलीथीन के अंदर वी विल पुट द वैक्सीन. वैक्सीन्स विल बी केप्ट इन द सेंटर पोर्शन, बीच में रखेंगे सो दैट आइस पैक की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे. देन आइस पैक्स ये अपना शेप का इसका डिफरेंट शेप है. ऊपर की तरफ लिड कैप इज डाउन एंड साइड से निकला हुआ है. दिस इज फिल्ड विद द वाटर टिल द मार्क. वाटर से फिल करेंगे विद 2 इसमें होल्स है. दीज ऑल्सो एज रिलीवेंट. और ये ऊपर निकला हुआ है जो कैप है दैट इज डाउन. ऐसा इसलिए है कि पानी अपन भरेंगे टिल द लेवल व्हेन वाटर विल बी फ्रीज देन इट विल एक्सपैंड. वो एक्सपैंड करेगा, हमारा आइस पैक फट ना जाए, इसलिए हम थोड़ी सी स्पेस हमेशा खाली छोड़ देते हैं. दीज 2 राउंड्स ऑफ डिफरेंट साइज, वन इज स्मॉल, वन इज बिग. स्मॉल इज फॉर दैट्स फॉर स्टोरिंग वैक्सीन्स. जो पतली वायल्स हैं वो इसमें आएंगी. जब हम बाहर सब सेंटर पे वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद हमारी एक्सपोज रहती है. बार बार हम वैक्सीन कैरियर को खोलेंगे तो अदर वैक्सीन्स विल बी ऑल्सो एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर. तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन को निकाल के आइस पैक के ऊपर रख देते हैं सो दैट वैक्सीन टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड. इसमें जो हम पानी भर रहे हैं दैट विल बी डिस्टिल्ड वाटर, नो सॉल्ट विल बी एडेड. उसमें पानी में नमक ऐड नहीं करेंगे सो दैट इट विल बी मेंटेन टेम्परेचर अप टू 24 आवर्स. डी सीरीज की वैक्सीन्स को हमें जमाना नहीं है सो दैट वी विल नॉट कैप द टेम्परेचर. उसमें वैक्सीन्स हम डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं रखेंगे. मॉनिटर कैसे होता है कोल्ड चेन का टेम्परेचर? ऑल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैव थर्मोमीटर्स. सब में थर्मोमीटर्स लगा होता है दैट विल मेंटेन द टेम्परेचर. एट एनी हेल्थ सेंटर मस्ट नॉट होल्ड एनी वैक्सीन फॉर मोर देन 1 मंथ. 1 महीने से ज़्यादा के लिए आप हेल्थ सेंटर पे वैक्सीन्स को स्टोर नहीं करेंगे. नो वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट सब सेंटर. ये आपको याद करनी है, अच्छे से नोट करना है कि सब सेंटर पे कोई वैक्सीन भी स्टोर नहीं होगी. डेली जब वैक्सीन का डे है, आपका वैक्सीनेशन डे है, मॉर्निंग में ANM जो है वैक्सीन सेंटर लेने के लिए PHC जाएगी, वैक्सीन लेगी और वापस आकर के वैक्सीन जितनी दिन भर में 9 to 5 में उसकी यूज़ होती है, आफ्टर 5 शी विल रिटर्न बैक टू द PHC. सब सेंटर पे वैक्सीन्स को स्टोर नहीं करेगी. इंपॉर्टेंट इज VVM. दिस इज पहले ये पोलियो वैक्सीन्स पे आता था, अभी और वैक्सीन में मीजल्स पे भी आने लगा है. दिस इज ऑफ स्क्वायर, इनर स्क्वायर एंड आउटर सर्किल. अंदर स्क्वायर है, बाहर सर्किल है. इसकी 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस आर देयर.
फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज कैन बी यूज. अगर वैक्सीन इज एक्सपोज टू टेम्परेचर देन द कलर ऑफ द इनर स्क्वायर विल चेंज. जो अंदर स्क्वायर का कलर है वो चेंज हो जाएगा. दिस इज फॉर लेमैन ऑल्सो, कि आपको पता होना चाहिए एज ए डॉक्टर कि आप उस पर देख रहे हो कि अंदर ऑलवेज चेक इट्स पोटेंसी. कैसे? अंदर के स्क्वायर का कलर चेंज तो नहीं हो गया. इफ इट इज एक्सपोज टू टेम्परेचर द इनर स्क्वायर कलर विल चेंज. पहले लाइट होगा व्हाइटिश, देन इट इज लाइटर देन आउटर, दैट इज स्टेज 2. If it is in stage 1 and stage 2, that is lighter than outer circle, then it can be used. If it is same as outer circle, then this is stage 3. If it is darker, if exposed to temperature, higher temperature, then stage 4. Then we will not use the 3 and 4 vaccines. We have to discard them. This not be used. So 1 and 2 are usable. 3 and 4 vaccines are discarded. This is the test for if the temperature sensitive vaccines are exposed to higher heat. जब उस गर्मी को एक्सपोज करेंगे तो इसका कलर हमारा VVM का वैक्सीन वायल मॉनिटर का कलर चेंज हो जाएगा. बट इफ द वैक्सीन्स लाइक T सीरीज वैक्सीन्स इफ दे आर एक्सपोज टू फ्रीजर, जब वैक्सीन मैंने निकाली DPT के लगाने के लिए, वो पहले ANM ने गलती से फ्रीजर में रख दी थी. अब जब मैंने उसको निकाली तो वो पिघल गई. नाउ इट इज इन लिक्विड फॉर्म. तो मुझे पता कैसे लगेगा कि दिस वॉज अर्लियर एक्सपोज टू फ्रीजर? उसके लिए शेक टेस्ट. शेक टेस्ट में वी विल शेक द वैक्सीन. वैक्सीन को आप शेक करेंगे. जैसे ही वैक्सीन को शेक करेंगे, शेक करने के बाद इट विल फॉर्म द सम क्रिस्टल्स. If the crystals will coagulate, shake control and test the samples vigorously for 10 to 15 seconds. Then stage 3 is allow it to rest. हम थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे कि वो जो sediments बने हैं that will settle down. If the sediments are settled down slower, then the vaccine can be used. If the sedimentation is similar or freezing exposed, then not use the vial. वन इज टेस्ट सैंपल, वन इज कंट्रोल. उससे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे इफ इट इज एक्सपोज टू फ्रीजर और नॉट. दिस इज शेक टेस्ट. थैंक यू.